friends, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is latitudes and longitudes. Before starting the chapter, you have to know some important terms like what do you mean by axis? Axis is the imaginary line joining the two poles and on which the earth rotates. Poles, two fixed points on the earth which are tips of the earth axis. Latitude, angular distance of a place north or south of the equator. Parallels of latitude, that are the imaginary circles running parallel to the equator in an east-west direction. Equator, the imaginary line of 0 degree latitude passing through the middle of the earth in an east-west direction. Longitude, angular distance of a place east or west of prime meridian. Grid, a network of parallels of latitudes and meridians of longitude. Prime meridian, the 0 degree longitude passing through Greenwich in England. Greenwich meridian, Greenwich mean time, the local time at Greenwich takes as standard time for the whole world. Indian Standard Time, the local time at 82 degree 30 East meridian in India, which is taken as the standard time of the whole country. International dateline, that is the 180 degree longitude slightly modified, the line where one calendar day ends and another begins. Now let's start the chapter. To find out a new place that we want to visit, we need some reference point or important landmark जैसे rivers, hills, temples, etc. Such important landmark which serve as a point of reference. On the earth, the North Pole and the South Pole are the two fixed point which serve as the reference point कि north में है वो जगह या south में है, east में है या west में है, कौन सी river के पास है, कौन सी hills पर है, तो ये क्या है हमारे reference point है अगर हमें कहीं घूमने जाना होता है. Observe a globe carefully. You will find two sets of imaginary line drawn on it. ठीक है, एक आप देखोगे इस तरीके से जो पैरेलल लाइन है वो ड्रॉ होती हैं जो कहीं भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती वेस्ट टू ईस्ट, इनको हम कहते हैं लाइंस ऑफ लैटिट्यूड. एक लाइन आप देखोगे जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जो है वो रन करती है, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से ज्वाइन करती हैं. ठीक है, इनको कहते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड और इसके नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, नेटवर्क ऑफ लैटिट्यूड एंड longitude is called a grid. Fine. And जहाँ पर इंटरसेक्शन होगी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की वहाँ वो जगह होगी. अगर हमें कहीं भी घूमने जाना है, हमें उसका लैटिट्यूड पॉइंट पता है, लॉन्गिट्यूड पता है, तो जहाँ पर वो चीज़ें इंटरसेक्ट होगी दैट इज़ द प्लेस ऑन द अर्थ. विद द हेल्प ऑफ दीज टू सेट्स ऑफ लाइन वी कैन डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ. नाउ लेट अस रीड in detail. First है latitude or the lines of latitude. If you cut the globe into two equal halves horizontally, the imaginary line thus formed is called the equator. अगर हम एक ग्लोब को, बॉल को, ठीक है, ग्लोब को हम बीच में से कट करेंगे तो दो सेमी सर्कल आपको मिलेंगे. एक सेमी सर्कल जो नॉर्थ की तरफ होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक सेमी सर्कल जो साउथ की तरफ होगा दैट इज सदर्न हेमिस्फीयर. और जो लाइन बीच में उनको कट करती है, इक्वल हाफ में डिवाइड करती है, दैट इज कॉल्ड द लाइन of equator. By latitude we mean the angular distance of a place from the equator. It is measured in degree. जैसे कि इक्वेटर होता है आपका 0 डिग्री, नॉर्थ पोल आपका होगा 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ पोल होगा 90 डिग्री साउथ. जैसे जैसे हम नॉर्थ 0 से पोल की तरफ जाएंगे, नॉर्थ पोल की तरफ, तो 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, ऐसे 90 डिग्री नॉर्थ तक जाता रहेगा और ऐसे ही सिमिलरली साउथ पोल की तरफ 90 डिग्री साउथ तक जाता रहेगा. सो टोटल कितने पैरेलल होते हैं, कितनी लाइन्स होते हैं, 181. ठीक है, 90 और एक आपकी इक्वेटर की लाइन. टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन ईच लैटिट्यूड इज मार्क्ड एज एन. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हर एक लैटिट्यूड को हम एन से मार्क कर देंगे, 1 डिग्री एन, 2 डिग्री एन, 10 डिग्री एन, 20 डिग्री एन, और साउथ में हम 20 डिग्री एस, 30 डिग्री एस, इस तरीके से मार्क कर देंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो. ठीक है,
कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल है, टोटल हमारी 181 पैरेलल हैं, 181 लैटिट्यूड हैं, ठीक है। तो इनमें से कुछ हमने इंपॉर्टेंट डिसाइड किए हैं, जैसे कि फर्स्ट है आपका इक्वेटर, इक्वेटर जिसको हम 0 डिग्री लैटिट्यूड भी बोलते हैं, जो आपकी अर्थ को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हेमिस्फीयर। ऑल्सो इक्वेटर इज द ग्रेटेस्ट सर्कल ऑन द अर्थ। नेक्स्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है, साउथ नहीं आएगा, नॉर्थ आएगा। एंड जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पैरेलल, 23.5 डिग्री साउथ इन सदर्न हेमिस्फीयर। एंड ट्रॉपिक ऑफ, उसके बाद है आर्कटिक सर्कल दैट इज 66.5 डिग्री नॉर्थ इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड Antarctic circle 66.5 degree south in southern hemisphere. If you already know about the latitude, then you can easily locate any place on the earth. Fine. Now, this is the interesting fact. Hipparchus, the Greek astronomer and mathematician, that is 2nd century BC, was the first to divide the circle into 360 degrees based on Assange's arithmetic. He had pointed out that the equator was a great circle and the meridian that were drawn converging on the poles were also great circle. For the determination of the latitude and longitude, he invented the instrument called astrolabe. And second है आपका एस्ट्रोलेब, सेकेंड है एरिस्टोथेन्स, जिसने जो एक ग्रीक जियोग्राफर थे, उन्होंने बताया कि इक्वेटर एंड ऑल्सो मेजर द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ। उसने इक्वेटर की लेंथ मेजर की और अर्थ का सर्कमफेरेंस मेजर किया विद द स्लाइट एरर, तो ही इन्वेंटेड एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड ग्नोमोन एंड ट्राइड to determine different latitudes and longitudes. Now let us discuss about the heat zone of the earth. Heat zone जो है ये आपके important parallel से ही related हैं, ठीक है, हम पढ़ते हैं। फर्स्ट है आपका टॉरिड जोन। अब इक्वेटर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सदर्न हेमिस्फीयर में, ये आपका कौन सा जोन है? टॉरिड जोन। इक्वेटर के पास होने के कारण टॉरिड जोन जो है वो सबसे ज़्यादा हॉट होता है। क्यों? क्योंकि सन की डायरेक्ट सनलाइट जो है वो किस पर पड़ती है? इक्वेटर पर। तो टॉरिड जोन जो है वो आपका सबसे हॉटेस्ट है। Okay, and this zone lies between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn, and the sun rays fall vertically on the Tropic of Cancer on 21st June, on the Tropic of Capricorn on 22nd December, on the equator on 21st March and 23 September. इसलिए इस जोन में experience high temperature around the year. Second है temperate zone. अब 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्कल, इनके बीच का जो जोन है उसको कहते हैं टेम्परेट जोन, या फिर हम कह सकते हैं मॉडरेट जोन। इसमें ना ही ज़्यादा गर्मी होती है ना ही ज़्यादा ठंड होती है, बिकॉज दिस जोन नेवर रिसीव्स द वर्टिकल रेज ऑफ द सन एंड देयरफॉर इट एक्सपीरियंस मॉडरेट टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। नेक्स्ट है फ्रीजिड जोन, ठीक है, ये देखो आप, ये टॉरिड जोन है इक्वेटर के पास का, ये टेम्परेट है आपका ये, एंड दिस इज फ्रीजिड जोन नियर द पोल्स। फ्रीजिड जोन बहुत ही ठंडा होता है बिकॉज द सन्स रेज आर वेरी स्लैंडिंग एंड देयरफॉर टेम्परेचर रिमेन्स वेरी लो हेयर थ्रू आउट द ईयर। इन फैक्ट दिस जोन रिमेन्स स्नो बाउंड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। पूरे सालों साल यहाँ पर हमेशा स्नो ही रहेगी, सो इट इज कॉल्ड द फ्रीजिड जोन, इसीलिए इसको फ्रीजिड जोन कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद होनी चाहिए विद इक्वेटर विद इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स। फाइन। नाउ नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। अभी हमने पढ़े लैटिट्यूड, ठीक है, जो पैरेलल लाइन थी। अब हम पढ़ेंगे मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। नाउ जो वर्टिकल लाइन है पोल से लेकर पोल तक। फाइन। So by longitude we mean the angular distance of a place east or west of a fixed meridian which is known as prime meridian. This meridian is considered as the 0 degree longitude. It divides the earth into two hemisphere, जैसे equator नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, ऐसे ही प्राइम मेरिडियन जो है वो अर्थ को ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर दो पार्ट में डिवाइड करता है प्राइम मेरिडियन, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग we have to know this interesting fact
The line of longitude passing through Greenwich located near London was chosen as the prime meridian, जिसको यूनिवर्सल वर्ल्ड का जो टाइम है वो ग्रीनविच लंदन पर प्राइम मेरिडियन का जो टाइम है उसी को कंसीडर किया जाता है. Now all the meridians are drawn as semicircle joining the टू पोल्स, नॉर्थ से साउथ तक. ठीक है, जैसे ऑरेंज होता है. अनलाइक द पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड, द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड आर इक्वल इन लेंथ. अब लैटिट्यूड आपके क्या होता है, इक्वेटर सबसे बड़ा लैटिट्यूड होता है. जैसे जैसे पोल्स की तरफ मूव होते हैं जो लैटिट्यूड है वो छोटे होते जाते हैं. ठीक है, लेकिन जो मेरिडियन है, लॉन्गिट्यूड है, वो क्या होते हैं, सारे इक्वल सेम साइज के होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं. But they are not parallel to each other. The distance between two meridian decreases poleward. लेकिन ये parallel नहीं होते, इनका जो distance है वो जैसे जैसे पोल की तरफ जाएंगे वो कम होता जाता है, क्योंकि पोल में जाकर ये ज्वाइन हो जाते हैं. All meridians are drawn at an interval of 1 degree on both the sides of the prime meridian. thus 180 डिग्री मेरिडियन आपके वेस्ट में होंगे, 180 डिग्री आपके ईस्ट में होंगे. तो टोटल कितने होते हैं आपके 360 मेरिडियन. ठीक है, और जो मेन मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन है और इंटरनेशनल डेट लाइन है वो एक ही है. ठीक है, इसीलिए टोटल कितने हैं आपके 360 डिग्री मेरिडियंस. ऑल्सो कॉल्ड the longitude with slight modification is also called the international date line. Now next है locating places on the globe. कैसे हम कोई प्लेस लोकेट करते हैं अर्थ की ग्रिड पर, जो एक नेटवर्क बना होता है पैरेलल्स का और या फिर लैटिट्यूड्स का और लॉन्गिट्यूड का, उसको ग्रिड कहते हैं. विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रिड वी कैन लोकेट एनी प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. अगर हमें किसी भी जगह का नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पता है, ठीक है, लैटिट्यूड पता है, जैसे कि मुंबई है 18 डिग्री 55 नॉर्थ लैटिट्यूड और 72 डिग्री 54 ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर है, तो जहाँ पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट होंगी वहाँ पर उसकी क्या होगी, एग्जैक्ट लोकेशन होगी मुंबई की. ठीक है, नाउ हियर इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट. The international date line is the line where one calendar day ends and another begin. International date line जो है वो आपकी ऐसी लाइन है जहाँ से एक कैलेंडर डे एंड होता है और दूसरा शुरू होता है. While traveling west to east, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जब हम जाते हैं we lose a day on crossing this line and gain a day while traveling east to west. ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं तो एक दिन लूज़ हो जाता है, यानी यहाँ पर अगर मंडे होगा तो यहाँ पर क्या होगा, संडे. ठीक है, और अगर हम इसका वाइस वर्सा करते हैं, अगर हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं तो एक डे हमारा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है अगर ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं. ठीक है, अगर यहाँ पर सैटरडे होगा तो जैसे ही इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करेंगे वहाँ जो कंट्रीज आएगी वहाँ क्या होगा, आपका संडे होगा. फाइन. Now next है longitude and time. Longitudes help us to know the local time of a place. Since the earth rotates on its axis once in 24 hours, each longitude faces the sun one after other. We know that there are 360 longitude in all. It means that each longitude take 4 minutes to face the sun. ठीक है, हर एक longitude, वन longitude होता है, एक लॉन्गिट्यूड के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, 4 मिनट्स का. इन अदर वर्ड देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 4 मिनट बिटवीन ईच लॉन्गिट्यूड. इफ वी नो द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑफ टू प्लेसेस, द डिफरेंस इन देयर लोकल टाइम कैन बी ईजिली फाइंड आउट. अगर हमें दो जगह का मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड पता है कि कौन से लॉन्गिट्यूड पर ये हैं, तो वहाँ पर टाइम डिफरेंस क्या होगा हम ईजिली बता सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट इज सिचुएटेड एट द लॉन्गिट्यूड ऑफ 30 degree east, as there is a difference of 30 degree longitudes between Greenwich and Alexandria. Therefore there will be a difference of 120 minute. 30 को हमने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यानी 120 मिनट्स या 2 घंटे का ग्रीनविच टाइम का डिफरेंस होगा. ठीक है, ऐसे ही जो आपका अरुणाचल प्रदेश है और वेस्ट में राजस्थान है, इसमें भी टाइम डिफरेंस इसीलिए होता है क्योंकि वो अलग अलग लॉन्गिट्यूड पर लोकेटेड हैं. फाइन. नेक्स्ट है लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम.
लोकल टाइम क्या होता है? जो जिस जगह का लोकल टाइम होता है। स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है? अगर हम एक लोकल टाइम को, मान लो अरुणाचल प्रदेश में सनराइज़ पहले होता है, ठीक है, क्योंकि वो इधर लॉन्गिट्यूड पर है, लेकिन राजस्थान उससे काफ़ी लॉन्गिट्यूड आगे है, राजस्थान में सबसे बाद में होता है सनराइज़ दिखाई देता है। अगर वहाँ का टाइम और अरुणाचल प्रदेश का टाइम जो है हम उसके अकॉर्डिंग अगर हम काम करेंगे लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगी। इसलिए हमने क्या किया, एक इलाहाबाद में एक पॉइंट को हमने क्या ले लिया, स्टैंडर्ड टाइम ले लिया, और उसको हम क्या किया, हमने 82.5 डिग्री ईस्ट दैट इज़ पासिंग थ्रू इलाहाबाद इज़ टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द कंट्री। फिर जितना भी ट्रेन्स का टाइम है, फ्लाइट का टाइम है, तो वो किस अकॉर्डिंग चलता है, वो लोकल टाइम के अकॉर्डिंग नहीं चलता, वो किसके अकॉर्डिंग चलता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग। फाइन, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द लोकल टाइम एंड द स्टैंडर्ड टाइम। Next है time zones of the world. A time zone is a north-south section of Earth in which all clock shows the same time. The subject of the World Standard Time was discussed at the International Congress held in Washington in 1884. ये क्या है, आपके जो मेन टाइम जोन्स ऑफ द वर्ल्ड हैं वो शो किए हुए हैं मैप में। And consequently, the world war divided into 24 time zone of 1 hour each. Large countries like Russia, Canada and USA, which have longitudinal extent, have adopted more than one standard time. For example, Russia has many as 11 standard times while the USA has 5. जैसे इंडिया में एक स्टैंडर्ड टाइम है, ऐसे ही जो कंट्री काफ़ी बड़ी हैं जैसे कि रशिया है या यूएसए है, इनमें काफ़ी स्टैंडर्ड टाइम्स को फॉलो किया जाता है। Now just have a quick recap of the chapter. North Pole and South Pole are two fixed points on the globe which serve as points of the reference on the Earth. The imaginary axis of the Earth joins the two poles. There are two sets of lines on the globe. The horizontal lines, circles drawn parallel to each other, are called parallel of latitude. The vertical lines drawn as semicircles are called meridians of longitude. Latitude is the angular distance of a place from the equator, and longitude is the angular distance of a place from the prime meridian. The equator, Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, Arctic Circle and Antarctic Circle are important parallels of latitude. Parallels of latitude demarcate different heat zones while longitudes determine the local time of a place. Prime meridians passing through Greenwich and the 180-degree longitudes are important latitudes. International date line is a very important longitude, as on crossing it a traveler loses a day in the east and gains a day in the west. The local time at Greenwich is taken as the standard time for the entire world. The local time at 82°30 east is taken as the standard time for the entire world. And the local time at 82°30 east is taken as the standard time in India. The Indian standard time is 5 hours 30 minutes ahead from the Greenwich mean time. And the world is divided into 24 time zones of 1 hour each. Russia has adopted 11 standard time while the USA has 5. So this is the chapter bachche. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.